So one by one, we'll go through various sutras, mostly from first two chapters, maybe one or two from third and fourth chapter, just as an example, sample. So whenever you want to break, please tell me. Should we continue? Okay. And feel free to interrupt me anytime. If you have any question, or if you don't understand, or if you want to share something, let it be more interactive. You see this one, is yoga is the only way of spirituality. No, I didn't say that yoga is the only way. But whatever you do which takes you to spirituality is yoga. Suppose music makes me very peaceful, introspective, for me music is yoga. Anything which unites you with the divine is yoga. Of course, you can note down also, we can sit afterwards also. And you can discuss with me personally. Yeah, make yourself comfortable. If you want to drink water, tea, whatever, use. We'll have 5 minutes break here. Thank you very much. So how are our other friends? Are you in touch? Sandhya? Mariam. Not many. It's long. I was trying to contact Simon Sargent, Tan, but I was not. No, I was in between. I was trying, but. I came in between, but I was yes. I don't know what I sensed. That's why first time I met, I was about to ask, are you Hina? I knew it's kind of coming. And I called up nobody told. Is it? Yeah. Okay. So just now you mentioned when you have certain desire like achieving PhD, you will take rebirth. Now, if this desire, if you are very cleansed, meaning that you actually can make it to the realization, but because of this desire, which you think is binding you, but then if this comes with other things, like if you didn't practice properly all the limbs of yoga in other ways, that means you still have a lot of ignorance and it causes you anger and all that. Does it mean that you may not take rebirth as a human at one level? You could even go down to other According to the realms? scriptures, it is not. Some people think God punishes us by making for example, by making us a pig. It's not punishment like thing. Suppose I have intense desire to eat more and more, then he has to give corresponding physical frame. With this body, thank you very much. To double grace, let it be. Let it. बाद में आ जाएगा. Because with this body I can't eat as much as my mind is demanding. Either I fall sick or I. So God will give appropriate body. Okay, fulfill your desire. So usually when your desire... Therefore, we have to take lower births. Therefore, otherwise, normally Aurobindo says, once you come to human level, normally you don't go down, you go more up and down. But if it is very intense, then you go a little down and again you come. Then in pig birth, you do something good, you protect somebody or something, and from direct you become God. So then the consciousness, that means whatever you learn, the knowledge that you have acquired in many life, is actually dropped into the eight consciousness, the alaya consciousness. I mean one consciousness. Then when you practice meditations and open up all the level, your body start to
mean, you start to realize, not that you start to realize that the different level until one stage you actually drop, you are able to start to access to your consciousness knowledge, and that will help you to understand more. Is it Yes, something yes, like that? yes, yes. Like, for example, for us, we always think that the breath is taking in through this to the lung. But when you meditate to a certain level, no, your full body is breathing already. Correct, You're no correct, longer using. You go from small to more wider knowledge. The gross. Yeah, will dissolve from off. gross to subtle. Yeah. And from there you can watch various roles which you are playing. A person in house is father, in court he is a lawyer, in college he is a student. But when you come down deeper level, you can see these different roles being played. And then you can play them perfectly. Then desire does not bind me. Then it is no bind. I can do PhD in the Karma Yoga in a detached way, and it will not bind me. Even if I die without PhD, I will not take again birth, because now I am detached. Another of practice in your daily life is it, let's say, the bad and the good. A lot of this dualistic fixation will actually confuse you more. So as a daily practice, you do good things, you perform well. Then you tell yourself what you must do. But if you see anything that happens in the world, whether it's very bad, do not be very emotional in it, because this will not do you good. That will come in afterwards. How we should respond to emotional things. If somebody is doing bad, how should be my reaction? Patanjali has told all these things. How not to be emotional. Suppose my child is doing something wrong. I have to correct him, but I get emotional. Then my purpose itself is not served. The child sees only my anger. He does not see the advice behind. So this way emotions are very harmful. My purpose is not served. You want to, your name you told? Paul. Roger. Roger. Yeah. How you spell? ROGER. What do you do? Oh, I'm actually a property agent. Agent. Yeah, selling property. Take a break and have a Kit Kat. Thank you. DJ, आप क्या नाम बताया आपका? मेरा नाम समरेश। समरेश। क्या करते हैं आप? मैं अभी आज कल पैसा कमा रहा है। रिटायर होने का पाथ ढूंढ रहा है। कहाँ से हैं वैसे आप? रिटायर होने का पाथ ढूंढ रहा है। आप सही जगह पे आए हैं। हाँ? सही जगह पे आए हैं आप। नहीं, मेरे हिसाब से दो रास्ता है। हैं? रिटायर आदमी और अनरिटायर्ड आदमी। रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। मेरा डेफिनेशन, मैंने जो डेफिनेशन बनाई है रिटायर और अनरिटायर्ड की अलग है। लाइफ का टारगेट यह है कि 100 साल से एक भी दिन कम बिना गुजारे यहाँ से जाएंगे। हैं? 100 साल से एक भी दिन कम बिना गुजारे हम यह संसार नहीं छोड़ेंगे। वेरी गुड। टारगेट तो उसके लिए क्या है कि उस टारगेट को अचीव करने के लिए सबसे पहले रिटायर हो जाइए। वेरी नाइस। रिटायर्ड और अनरिटायर्ड। अनरिटायर्ड आदमी वो होता है वो काम करता है जो उसको करना पड़ता है। रिटायर्ड आदमी वो होता है वो काम करता है जो करना चाहता है। बहुत इंटरेस्टिंग है आपकी फिलॉसफी। तो रिटायर होने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए। वही। फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए। हाँ। अभी क्या है, मैं सुधांशु जी महाराज जी का चला हूँ, उनसे दीक्षा ली मैंने। हाँ, और जब हाथ रखा था ना तुरंत मैं स्पिरिचुअल हो गया था। इसीलिए मैंने क्वेश्चन किया, योगा इज द ओनली वे फॉर स्पिरिचुअलिटी। योगा अगर आप सिर्फ आसन प्राणायाम समझते हैं तो वो है, दैट्स नॉट द ओनली वे। सुधांशु महाराज से आपने सुना लेक्चर, उससे आप स्पिरिचुअल बने, वो भी। तो बेसिकली यह है कि अनरिटायर्ड से रिटायर्ड हो जाओगे आप। जितनी रिटायर्ड हो जाओगे आप उतनी जल्दी आपकी लाइफ है ना, आपकी लाइफ स्पान जो बढ़ जाएगा।
ये मैं हमारा करेक्ट, सही बात है। नहीं तो लोग मर जाते हैं काम करते करते और कुछ अचीव नहीं होता। रिटायर का मतलब ये नहीं कि काम नहीं करना है। रिटायर का मतलब वो है कि वो काम करें जो करना चाहते हैं। वही वही ना, जो Unretired जो मतलब- हॉबी की तरह है, काम करते हुए मजा आए, आनंद आए। अभी तो क्या है कि बच्चों को पालना है, वो करना है, तो हमको पैसा कमाने के लिए नौकरी करनी पड़ती है। मैं इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। हैं? मैं इंजीनियर हूँ बाय अच्छा, प्रोफेशन। या बहुत खुशी की बात है। हमारे बॉस भी इंजीनियर हैं, डॉक्टर नागेंद्र। कौन से ब्रांच में हैं आप? मैं इलेक्ट्रॉनिक हूँ। इलेक्ट्रॉनिक। मेरे घर गए थे डॉक्टर नागर। मिले थे आप उनसे? अच्छा, एक दो सूत्र लिख दो, हम आपसे डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा लीजिए प्लीज़। Let us begin with one Om. The first sutra is अथ योग अनुशासनम, सेकेंड इज योग चित्तवृत्ति निरोधः, थर्ड इज तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम. In a way, entire yoga is covered in these three sutras. As we saw, yoga is union with divine, or union with our own self. We are divine. So what happens in that state of union? You achieve your true nature. All these are masks: body, mind, intellect, we call upadhi. But the essence of our being is that pure consciousness. So by doing yoga, by controlling the mind, the waves don't allow us, waves of thoughts, don't allow us to die within our own self. So control the waves so that you are within yourself and you achieve your sarupa. So that is yoga. What is yoga? To be in your sarupa. So what is rupa? What is sarupa? Sarupa is essence. Rupa is form. Gold is essence. Gold can have various forms: bangle, necklace, ring. So these are all names and shapes. But what is the essence? What is the content? स्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. आत्मीय स्वजन, पातंजल योग दर्शन के मोहन जी स्मृति व्याख्यानमाला का आज 42वां सूत्र है, पुष्प है, और इसमें हम द्वितीय पाद अर्थात साधन पाद के 30वें सूत्र पर पहुंच चुके हैं. कल के सूत्र में पतंजलि महामुनि ने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टांगानि, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, यह योग की 8 अंग है ऐसा बताया. और इनमें से कुछ ऐसा गर्भितार्थ निकलता है
कि कुछ अंग थोड़े प्रमुख है अथवा कुछ अंग बहिरंग योग के रूप में जाने जाते हैं और कुछ अंतरंग के रूप में। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार यह बहिरंग के रूप में जाने जाते हैं और धारणा, ध्यान, समाधि यह अंतरंग के रूप में जाने जाते हैं। इस पर थोड़ा सा विस्तार आगे चलकर हम देखेंगे, लेकिन इसमें एक गर्भितार्थ थोड़ा सा यह भी आया है, या जो साधक है वे कहते हैं कि इसमें से यम, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि यह साधक के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उस अर्थ से वे भी उपयोगी तो है, लेकिन कुछ गौण आसन या उसके पूर्व नियम, आसन और प्राणायाम ये कुछ गौण हो सकते हैं। यहाँ गौण से तात्पर्य इतना ही है कि आयु के अनुपात में या शारीरिक स्थिति या व्याधिग्रस्त शरीर है, शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उस परिप्रेक्ष्य में इनमें कुछ कमी बेसी आ सकती है या की जा सकती है। लेकिन बाकी के जो यह 5 अंग पूर्व में बताए, इनका अभ्यास अनुष्ठान के रूप में करना चाहिए, तभी साधक की, क्योंकि यह जो अंग है यह मतलब यह अष्टांग ही यह अनुष्ठान के रूप में लेने की जरूरत ही इसलिए जरूरत कि इसी के द्वारा विवेक ख्याति अथवा जो चित्त की असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था उत्पन्न होती है, उससे फिर कैवल्य प्राप्ति इससे होकर विवेक ख्याति की अवस्था इससे प्राप्त होती है। और इसलिए यह विवेक ख्याति का अनुष्ठान है, इस रूप में इसको देखना चाहिए। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये 8 अंग बताए हैं। और जैसा कि कल कहा था, हम में से अधिकतर लोग इन शब्दों से और इन अंगों से भी परिचित है, लेकिन फिर भी इनमें से एक एक अंग थोड़ा स्थूल रूप में ही देखने का प्रयास हम करेंगे। तो पतंजलि महामुनि 30वां सूत्र देते हैं, अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यह 5 यम अर्थात यम के उपांग इस रूप में पतंजलि महामुनि कहते हैं। वह यह कहते हैं कि यह 5 मिलाकर यम होता है। यहाँ पर एक क्राइटेरिया लगाने की आवश्यकता है, और वह यह एक मूलभूत सिद्धांत कि यह कायिक, वाचिक और मानसिक इन तीनों स्तरों पर इसको लगाने की आवश्यकता है। तो कायिक अहिंसा, जैसे अहिंसा सत्यास्तेय है, तो कायिक अहिंसा, वाचिक अहिंसा और मानसिक अहिंसा, ऐसे फिर उसके भेद हो जाते हैं। लेकिन अहिंसा तो अहिंसा ही है, किसी प्रकार का चित्त में वैसा विचार न आना अर्थात हिंसात्मक वृत्ति उत्पन्न न होना और हिंसात्मकता से आगे बढ़ना, यह बहुत जरूरी है, ऐसा पतंजलि महामुनि कहते हैं। पतंजलि महामुनि प्रमुख रूप से इस बात को इसलिए देते हैं कि यह चित्त की अशुद्धि है। कौन सी? तो हिंसा या असत्य, या फिर आगे चलकर जो वो देते हैं अस्तेय, मतलब स्तेय, उसके विरोध धारती यह शब्द है। तो यह अशुद्धियां हैं चित्त की। जब तक यह अशुद्धियां दूर नहीं होगी
तब तक कैवल्य प्राप्ति के मार्ग में रुकावटें या बाधाएं रहेगी। इसलिए इनको निकालने की, इनको दूर करने की आवश्यकता है, ऐसा पतंजलि महामुनि बताते हैं। तो वे कहते हैं कायिक अहिंसा, तो इनको डू नॉट्स के रूप में लेने की आवश्यकता है। तो क्या डोंट डू हिंसा, तो डू नॉट डू हिंसा, यह उसका मुख्य भाग है, इसको समझना हमें जरूरी है। तो हिंसा यदि होती है तो वह इन तीनों स्तरों पर होती है, इसलिए अहिंसा का पालन करना है तो इन तीनों स्तरों पर। तो काया से भी अहिंसा का पालन करो, वाचा से भी अहिंसा का पालन करो, और मन से भी, मानसिक दृष्टि से भी अहिंसा का पालन करो। तो कायिक अहिंसा कौन सी हुई? तो कायिक अहिंसा हमारे हाथ से, साधकों के हाथ से भी, सामान्य जनों के हाथ से भी निरंतर कोई ना कोई हिंसा के कार्य होते ही है। हम रास्ते से साधे चले तो हमारे पैरों तले न जाने कितने कृमि, कितने कीटक, कीट और कितनी चीजें दबकर मर जाती है, जिनका हमें पता भी नहीं होता है, लेकिन यह हिंसा निरंतर होती है। तो हिंसा हमारे शरीर के द्वारा होती है, हमारे काया के द्वारा। अरे हम बिस्तर पर लेटेंगे तो उस चद्दर में न जाने कितने सारे कृमि, कितने सारे वायरसेस, कितने सारे जर्म्स, वर्म्स आदि होंगे। तो हम जो कुछ भी करेंगे, मैं बोल रहा हूँ तो न जाने मेरे मुंह से कितने ऐसे जर्म्स निकल रहे होंगे, बैक्टीरिया निकल रहे होंगे, और जो हवा में जाते ही उनको प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना पड़ता है और वो मर जाते। तो निमित्त तो मेरा शरीर और मैं बन रहा हूँ। ऐसा निरंतर हो रहा है। मैं श्वास लेता हूँ, श्वास छोड़ता हूँ, मैं अपने पलके झपकता हूँ, इससे भी मैं हाथ हिला रहा हूँ, तो हवा में स्थित न जाने कितनी सारी चीजें होंगी, वह मर जाती है और उनकी हिंसा होती है। लेकिन यहाँ पतंजलि जो कह रहे हैं ना, वह उसके साथ दूसरी भी चीज कह रहे हैं। यदि आपके मन में ऐसा कोई विचार नहीं है कि उनको आपने कष्ट पहुंचाना है या आप कष्ट पहुंचाना चाहते हो, तो यदि अनजाने में ऐसी कोई चीज आपसे घटित हो जाती है तो वह हिंसा की श्रेणी में नहीं आती है, ऐसा भी कहते हैं। तो कायिक हिंसा, अपने आप को तकलीफ देना, ये भी हिंसा है। ये सुसाइड वगैरह इन दिनों ये जो प्रकरण बचे बहुत सारे हो रहे हैं, हम रोज उनको पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं, जानते हैं। तो यह सारे प्रकरण ये कायिक हिंसा ही है। अभी अभी ग्वालियर में थोड़े दिन पूर्व एक लड़की ग्वालियर के किले पर गई अपनी स्कूटी लेकर, और पता नहीं न जाने क्या हुआ, क्या बातचीत हुई मोबाइल पर किसी से हुई, और उसने अपनी स्कूटी शुरू करी, ऑन करी, और स्कूटी की स्पीड बढ़ाई और किले की दीवार से, उस तट से वह कूद गई। वह जाकर उसका पेड़ पर शव क्षत विक्षत अवस्था में लटका पड़ा रहा, उसकी वहीं पर डेथ हो गई, और उसकी स्कूटी नीचे जाकर गिरी। और तब उसके घर परिवार के लोगों ने ढूंढा ढूंढ करी तो पता पड़ा कि वो किले पर गई थी। वहाँ देखा तो नीचे उसके कुछ कपड़े सपड़े दिखाई पड़े, जूते चप्पल दिखाई पड़ी। क्या है, अपने आप को तकलीफ देने की ये पराकाष्ठा है। इतना ही नहीं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो दूसरों को बहुत परेशान करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दूसरों को बीड़ी सिगरेट से दाग लगाना, उनको उससे दागना, वो जलती हुई चीज, जलती हुई कोई लकड़ी उठा लेना, उसको लगा देना, पीन चुभो देना, या रास्ते पर ऐसे कांटे और पीन कांच फैला देना कि जिससे जो जाने वाला व्यक्ति है उसके पैर में जो चुभ जाता है, तो फिर उसमें खुशी मनाना, हंसना, उसके कारण भी यह कायिक
हिंसा के अंदर यह आता है। तो ऐसी हिंसा भी मनुष्य के मन के अंदर की यह अशुद्धि है, और इस अशुद्धि का क्षय होना यह जरूरी है। तो हमारा उठना बैठना चलना खाना पीना सारे शरीर व्यापार यह ऐसे होने चाहिए कि जिसके कारण दूसरों को किसी प्रकार का दुख नहीं पहुंच रहा है, यह हमें देखने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं तो कुछ बहुत छोटी चीजें होती है, प्राणी है, कुछ पशु है, पक्षी है, कृमि है, कीट है, उनको भी नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं तो अंतसदनी योनि के जो वृक्ष आदि है, जो अपने आप में समेटे हुए उनकी योनि है, जो ज्यादा हलचल नहीं कर सकते, वह लताएं, वह वृक्ष आदि, उनको भी हमारी हलचल से, हमारी शारीरिक गतिविधि से किसी प्रकार का कोई दुख नहीं हो रहा है ना, यह साधक ने इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस प्रकार जो खुद को दिया हुआ दुख, उसको भी जो किसी न किसी प्रकार उससे हट जाता है, और दूसरों को जो दुख देने की जहाँ पर नौबत आती है या हो सकता है, तो वहाँ पर भी वह अहिंसा व्रत का यथावत पालन करता है, और वह दूसरों को भी दुख ना हो इसका प्रयास करता है। तो उसको कायिक अहिंसा ऐसा कह सकते हैं। इस दृष्टि से दूसरों को हमसे कम पीड़ा हो, और वह प्रयास जब साधक करता रहता है तो उसको अपने से दूसरों को कम से कम कष्ट पहुंचे इसके उपाय भी सूझने लगते हैं। इसकी ये विशेषता है। इस अहिंसा धर्म का पालन करने से धीरे धीरे मन में कुछ ऐसे उपाय सूझने लगते हैं कि उससे फिर आदमी हटता है। उदाहरण के लिए जैसे मच्छर है, तो मच्छरों को मारा जाता है। कभी कभी हम वह क्या लगाते हैं, वो कौन सा फ्लूइड होता है वो लगाते हैं। कभी कभी हम वो ऑल आउट, हाँ ऑल आउट, फिर एक अगर प्रकार की अलग प्रकार की वो होती है अगरबत्ती, मच्छर छाप, वो लगाते हैं। और फिर कभी कभी हम बिजली के इस पर भी कुछ टिकियाँ रख देते हैं ऑल आउट की बल्ब पर, या फिर कुछ जो दवाई वगैरह है वो हम छिड़कते हैं, तो उससे मच्छर वगैरह मर जाते हैं। तो जब मच्छर हमसे मारे जाते हैं तो फिर वह हिंसा तो हुई, लेकिन उसका उपाय भी सोचता है कि हम अपना कमरा साफ रखें, कमरे में कम से कम सामान रखें, कमरे में रोज झाड़ू पोछा लगे, कमरे में थोड़ा सा फिनाइल वगैरह डालकर यदि व्यवस्थित कमरा रखते हैं, चप्पल जूते कमरे के बाहर उतारते हैं तो गंदगी कमरे में कम से कम आएगी। कपड़े यदि हम अपने साफ सुथरे रखते हैं तो मच्छर आदि ज़्यादा नहीं होंगे, और फिर हम मच्छरदानी का उपयोग करेंगे तो फिर हमें मच्छर मारने की जो हिंसात्मक बात है वह थोड़ी सी कम हो जाती है। इस प्रकार अहिंसा के उपाय सूझने लगते हैं। उससे क्या होता है, मन की निष्ठुरता कम होती है। मन का जो सख्तपन है, या अरे थोड़ा मार दिया क्या हो गया, यह जो बात है, तो एक सद्भावना दूसरे जीवों के प्रति, जियो और जीने दो, यह बात उससे उत्पन्न होती है, और धीरे धीरे यह बात बढ़ते जाती है। कुछ साधकों का ऐसा भी होता है कि जब वो कुछ साधना का अपना नित्य नियम से पालन करते हैं, जैसे मैं 12 बजे के पहले खाना नहीं खाऊंगा, मैं इतना योगाभ्यास करूंगा, मैं संध्या वंदन करूंगा, मैं तब तक पानी नहीं पीऊंगा, या मैं इतनी मालाएं करूंगा उसके बाद ही भोजन करूंगा। और इस कारण कभी कभी परिवारजनों को तकलीफ होती है, घर की महिलाओं को, स्त्रियों को परेशानी होती है
और उसके बाद उनका भोजन और उसके बाद बर्तन आदि धोना, घर के किचन की साफ सफाई, उनको बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। तो आपके अनुष्ठान के कारण भी दूसरों को कष्ट होना, यह बात भी कायिक अहिंसा के अंतर्गत आती है। तो ऐसी सूक्ष्मता धीरे 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 हमारे अंदर आनी चाहिए। इसलिए अहिंसा व्रत का पालन करते हुए जो व्यक्ति ऐसी इच्छा रखता है तो वह दूसरों को हमसे किसी प्रकार साक्षात पीड़ा नहीं होनी चाहिए, ऐसा बर्ताव वह करे और अप्रत्यक्ष रूप से भी उसको तकलीफ मेरे व्यवहार से, मेरे वर्तणूक से होना नहीं चाहिए, ऐसा उसको लगना चाहिए और ऐसा प्रयास उसने करना चाहिए। इस प्रकार अपने शारीरिक व्यापार से, व्यवहार से अन्यों को, इतर लोगों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पीड़ा नहीं होनी चाहिए। तो वह प्रयास जो है वह कायिक अहिंसा के क्षेत्र में आता है। मुझे लगता है थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप सब लोग जानते हो कि भारत का जो ब्रीद वाक्य है वह अहिंसा के संबंध में है ही। अहिंसा परमो धर्मः, ये हम सब लोग जानते हैं। तो इस प्रकार अहिंसा यह मानवीय जीवन का बहुत महत्वपूर्ण भाग हो जाता है। वाचिक अहिंसा भी होती है। अनेक लोग दूसरों को भड़काते हैं, जला दो ये फैक्ट्री, अरे इन लोगों ने यह सब ऐसा किया था, इन लोगों की पिटाई करो, अरे देखो वो भाग रहा है, वो चोर है, कुछ न होते हुए भी सीधे ऐसा कुछ कह देते हैं। तो यह वाचिक हिंसा है, जो दूसरों को उचकाने वाला काम, दूसरों को प्रेरित करने वाला, अपनी वाचा से अथवा वह अपनी वाचा से दूसरों को गाली गलौज करता है, गलत शब्द प्रयोग करता है, दूसरे को मन से दुख होता है, अंदर से वह दुखी हो जाता है। तो वहां पर भी कुछ सावधानता रखने की आवश्यकता है। और यदि उसने कुछ ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग किया तो दूसरे जब दुखी हो जाते हैं तो वह वाचिक हिंसा होती है। तो इस प्रकार की हिंसा भी होनी नहीं चाहिए। कभी कभी उपरोधिक भाषा का उपयोग करता है, कभी कभी टोचने वाली बात, कभी कभी बहुत बारीक बात, पुरानी कोई बात याद करके उसको कह देना, ऐसा भी होता है। और वह सारा वाचिक हिंसा के अंतर्गत आता है। तो एकदम कड़क बात करना और एकदम कठोर बात करना, दूसरों को दुख हो गया ऐसी बात करना, उसका उपहास करना, उसकी कुचेष्टा करना, उसकी निंदा करना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वह व्यक्ति सामने नहीं है तो उसके बारे में कुछ बोलना उल्टा पुल्टा, यह सारा वाचिक हिंसा के अंतर्गत आता है। या फिर कभी कभी हम किसी को इतना जलील कर देते हैं, बहुत, क्या समझते हो, क्या है, और तुम मुझे कुछ समझते नहीं हो, और देख लूंगा, ये वो, यह सारा वाचिक हिंसा के अंतर्गत आता है। तो उस स्तर पर भी हमने यह वाचिक हिंसा को थोड़ा थोड़ा हमने इसको टालने का प्रयास करना चाहिए और वाग व्यवहार सुधारना चाहिए। तो उससे वाचिक दृष्टि से अहिंसा का पालन होगा। तो यह साधक के लिए जरूरी है। मानसिक अहिंसा, मानसिक अहिंसा व्रत का पालन करना, ये इन दोनों से, मतलब कायिक अहिंसा और वाचिक अहिंसा से, यह थोड़ा सा कठिन है। कायिक और वाचिक अहिंसा में मन में हिंसात्मक विचार जब आ जाते हैं तो उसके अनुसार शरीर और वाणी से व्यवहार नहीं करना, इसको संयम से हम अपने जीवन में ला सकते हैं।
संयम का यदि उपयोग करेंगे, पालन करेंगे, तो कायिक और वाचिक अहिंसा हो जाती है। लेकिन यह जो मानसिक हिंसात्मक वृत्ति है, यह है तो बड़ी मतलब हम बाहर से तो दिखाई नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर से कूदते जा रहे हैं, अंदर ग्रंथियां बन रही है, अंदर प्लानिंग कर रही है, योजना बना रहे हैं। ऐसा जब होता है, प्रत्यक्ष कृति में नहीं अभी आया है, लेकिन ऐसा सोचते जा रहे हैं। जैसे आतंकवादी गतिविधियां होती है, करने वाले तो कोई होते हैं, लेकिन उसका एक मास्टरमाइंड होता है। उस घटना का मास्टरमाइंड पकड़ा गया या फिर उस एनकाउंटर में वह मारा गया, ऐसा कहते। तो मास्टरमाइंड वह चुप होता है, प्रत्यक्ष कृति नहीं कर रहा है वो, लेकिन वह योजना बना रहा है। ऐसी हिंसात्मक योजना भी यह हिंसा की श्रेणी में आता है। इसलिए उसको बहुत सूक्ष्म स्तर पर काम करके उस साधक ने एकदम निर्वैर होकर उसका अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो किसी प्रकार कोई अपकार उसके मन में न आए, ऐसा उसने ईश्वर के साथ नित्य करुणा की भीख मांगनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। और यह भी नहीं सोचना चाहिए कि कोई दुष्ट व्यक्ति है, उसको किसी प्रकार का शासन देना चाहिए, मिलना चाहिए। ऐसा भी न सोचकर, जो हमने प्रथम पाद के 33वें सूत्र में देखा था, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम। तो यह जो उपेक्षा की भावना है, यह उपेक्षा की भावना वहाँ पर लगाकर मानसिक दृष्टि से हिंसा के उस भाव से धीरे धीरे हटना चाहिए। उस प्रकार यह भी सोचना चाहिए कि सबका प्रेरक तो एक ही है, एक ही ईश्वर है जो सब में प्रेरणा भरता है। तो उसी का सतत अनुसंधान मतलब सतत विचार मन में रखना चाहिए। उसका यदि अनुसंधान मन में रहेगा तो अंतःकरण में किसी के बारे में भी क्रोध, द्वेष, उनके विषय में घृणा, किसी का अनिष्ट हो जाए, ऐसी कल्पना आदि भाव मन में उत्पन्न ही नहीं होंगे। और उस कारण अहिंसा की मनस्थिति फिर बनाकर रखना संभव है। तो यह मानसिक दृष्टि से अहिंसा हुई। तो अहिंसा के यह 3 भाग, काया, वाचा और मनसा, इन तीनों दृष्टि से अहिंसा का पालन करना चाहिए। आगे है सत्य। सत्य के बारे में हम जानते हैं, भारत में सत्य का बहुत बोलबाला है। कहते हैं सत्यमेव जयते। छोटे छोटे बातों में भी, जो कोर्ट के प्रकरण होते हैं उनमें भी लोग यह कहते हैं। वहाँ पर तो जब गीता की किताब आगे लाई जाती है, तो मैं गीता पर हाथ रखकर जो कहूँगा वह सत्य कहूँगा, सत्य के बगैर मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, ऐसा सर्वप्रथम वहाँ न्यायाधीश के सम्मुख जो व्यक्ति उस कटघरे में खड़ा होता है, चाहे वह पक्ष से हो चाहे प्रतिपक्ष या विपक्ष से हो, उसको यह बात पहले कहनी पड़ती है। तो इतना सत्य को यदि हम कह देंगे, सत्य पर बोलना है, तो फिर आदमी उसमें से मुकरेगा नहीं, ऐसा एक विश्वास किया जाता है। और सत्य की सामान्य बात तो यही है कि हम जो सत्य का जो विचार करते हैं, या सत्य की बात जो मन में आती है, तो उसके संबंध में जो ज्ञान है, जब हम किसी से भी बात करते हैं दूसरे व्यक्ति से, तो उसके अंतःकरण में भी उस सत्य का ज्ञान उठना चाहिए। सत्य के प्रति उसके मन में आस्था उत्पन्न होनी चाहिए। ऐसा विचार मन में रहना यह जरूरी है।
और ऐसा मेरे वर्ताव से, मेरे बोलने से, मेरे अंग विक्षेप से, मेरे अभिनय से, मेरे चित्त के बोध से दूसरे के अंदर वह संक्रमित हो जाना चाहिए। क्या? तो सत्य का भाव, यह है सत्यनिष्ठा। इतनी सूक्ष्मता से जब साधक विचार करता है तब वह भीतर से उस सत्य का पालन करने वाला हो जाता है। तो सत्य का पालन कैसे होता है? तो सत्य का पालन राजा हरिश्चंद्र ने किया। इंद्रदेव याचक के रूप में जब स्वप्न में आते हैं और कुछ मांगते हैं, तो राजा मुझे तुम्हारा संपूर्ण समग्र राज्य चाहिए, और राजा हरिश्चंद्र तथास्तु कहते हैं और अपना संपूर्ण राज्य उनकी झोली में डालते हैं उस याचक के। इंद्र जो याचक का रूप धारण करके आया और दूसरे दिन अपना राज्य छोड़कर, वास्तव में स्वप्न में दिया हुआ वचन है, लेकिन स्वप्न में दिया हुआ वचन भी, उसका भी मैं पालन करूंगा। और फिर वह कितनी यातनाओं से गुजरते हैं, कैसे वह जो मुक्ति धाम होता है वहाँ पर वे रहते हैं और अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए वे वहाँ उस अवस्थाओं से गुजरते हैं। कहने का तात्पर्य है, स्वप्न में दिया हुआ विचार या बात या वचन, उसका भी पालन करना। और कुछ लोग तो अपने देश में ऐसे भी हुए कि जिन्होंने प्रत्यक्ष वचन दिया ही नहीं, ना जागृति में ना स्वप्न में, लेकिन उनके पिता ने वचन दिया तो उस वचन का भी पालन करना है। प्रभु रामचंद्र के जीवन में हमने यह देखा, महाराजा दशरथ जी ने कैकेयी को जो वचन दिया था, उस वचन को पूर्ण करने के लिए जब उसने कहा कि मुझे वर चाहिए, एक तो मेरा पुत्र, यह राज्याभिषेक उसको होना चाहिए, और श्री राम इनको 14 वर्ष के लिए वनवास भेजना होगा। यह कहते ही दशरथ की क्या स्थिति होती है ये हम सब लोग जानते हैं। और प्रभु रामचंद्र ने प्रत्यक्ष यह वचन नहीं दिया था, वचन तो दिया था उनके पिता ने, लेकिन पिता का दिया हुआ वचन भी फलित होना चाहिए और पूर्ण होना चाहिए। ऐसा ये जो श्रेष्ठ पुत्र होता है वह मानता है। इतने बड़े सत्य वचनी इस देश में हुए हैं, ऐसी अनेकों घटनाएं यहाँ पर बताई जा सकती है, लेकिन हम अभी तत्काल उन बातों की ओर यहाँ पर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर सत्य का पालन करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो बात है ना, वह इतनी है कि हमारे अंदर यह जो सत्य की बात या भावना उदित होती है, उसका संप्रेषण होकर हमारे सम्मुख जो व्यक्ति आता है, उसके अंदर भी सत्य पर निष्ठा स्थापित होना चाहिए और वह सत्यनिष्ठ बने। ऐसा हमारा अंग विक्षेप, ऐसी हमारी बोलचाल, ऐसी हमारी कृति, हमारा सब कुछ वैसा हो जाए। यह सत्य की सबसे बड़ी और ऊंची स्थिति है। उसका यदि साधक पालन करता है तो निश्चित रूप से सत्य फलित होता है। तो सत्य को, असत्य को अपने जीवन में नहीं आने देना, इस रूप में देखने की आवश्यकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब असत्य कोई व्यक्ति बोलता है तो आप सब लोगों को पता है, हम सब लोगों को पता है, फिर उस असत्य को छुपाने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, बहुत प्रयास। अरे इसको बताया था कि नहीं बताया था, शायद मैंने उसको भी बताया था, लेकिन उसको तो मैं बता ही चुका हूँ, तो उससे भी छुपाओ, उसको भी छुपाओ, और यदि इनको मैं न छुपाऊं और बता दूं तो कभी उनका उनसे संपर्क हुआ तो वो बता देंगे तो आफत हो जाएगी। तो असत्य मैंने जो बोला, मतलब झूठ मैंने जो बोला, वह निरंतर छुपाते जाओ तो एक बड़ा उसका बोझ हमें जीवन भर फिर ढोना पड़ता है। तो यह भी
एक बहुत ही विचित्र सी बात हो जाती है। इस दृष्टि से सत्य का पालन करना चाहिए। शास्त्रों में आया है, स्कंद पुराण में आता है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। सत्य और प्रिय जो होगा वही बोलना चाहिए। सत्य लेकिन जो अप्रिय है वह कभी नहीं बोलना चाहिए। जो प्रिय है लेकिन झूठ होगा, असत्य होगा, वह नहीं बोलना चाहिए। यह सनातन धर्म है, ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। इसलिए इस बात को हमने अच्छे से समझ लेना चाहिए कि सत्य यह बहुत महत्वपूर्ण चीज। और सत्य से एक चीज होती है, एक बार सत्य बोल दो ना, मान लीजिए हमारे हाथ से कोई गलती हुई या हमने कोई गलत काम किया और बता दिया, तो उसके बाद हम एकदम हल्के हो जाते हैं। हमें कोई छुपाने की बार बार उनके पास मतलब एक ही, मान लीजिए शर्मिंदगी होती भी है तो एक ही बार होनी है। और दूसरा व्यक्ति जिसके सम्मुख हमने अपने आप को अभिव्यक्त कर दिया, वह यदि समझदार हो तो उस दूसरे बात का वह जिक्र भी नहीं करेगा और हम उस बोझ से धीरे धीरे हट जाएंगे। इस दृष्टि से अपने बोलने में यह सावधानता रखने की आवश्यकता है, वैसे आचरण में भी यह सावधानता रखने की आवश्यकता है। और हम अनावश्यक रूप से, अवास्तविक रूप से हमने असत्य को जीवन में लाना नहीं है और सत्य व्रत का भंग हमने कभी करना नहीं चाहिए। इससे तो अच्छा है मौन ही रखो, इससे तो अच्छा है मौन ही रखो, बोलो ही नहीं। यदि असत्य बोलने की आवश्यकता पड़ती है या बोलना पड़ेगा ऐसा लगता है, तो उससे तो अच्छा है मौन रखो कि जिसको जो समझना है वह समझ लेगा। इसलिए इस दृष्टि से तो एक सुनीता ताई कह रही है कि वो कहानी बता दो, तो वह कहानी वैसे तर्क के साथ संबंधित है लेकिन सत्य के लिए लागू पड़ती है, वह बता देता हूं। एक उतथ्य नाम के ऋषि थे, साधना करते थे और सत्य बोलना यही उनके जीवन का व्रत है। उन्होंने व्रत ही लिया था कि मैं सत्य ही कथन करूंगा, सत्य ही बोलूंगा, असत्य कभी नहीं बोलूंगा। और वे साधना में लीन थे, अपनी कुटिया के पास साधना कर रहे थे। उतने में एक हिरण दौड़कर आता है और हिरण आकर उनकी झोपड़ी की तरफ चला जाता है। देखा तो है इन्होंने, और लेकिन वह साधना में लीन है, साधना करते रहते हैं। थोड़ी देर में उसके पीछे पीछे ही एक व्याध शिकारी दौड़ता दौड़ता आता है अपना तीर धनुष लेकर, और वह ऋषिवर को पूछता है, उतथ्य ऋषि को पूछता है कि मेरी शिकार एक हिरण इधर की तरफ आया था और आपके सामने से ही गया, आपने उसको देखा होगा, तो महाशय कृपा करके मुझे यह बताइए कि वह कहाँ पर गया, किधर गया। अब ऋषि के सामने जो साधना में रत थे और जिनके जीवन का व्रत था कि मैं सत्य ही बोलूंगा, सत्य के सिवा इधर कुछ नहीं बोलूंगा, अब उनके सामने धर्म संकट कि सत्य बोलता हूं तो हिरण मारा जाता है, असत्य कहता हूं तो मेरा व्रत भंग होता है, टूटता है। तो वह वो की स्थिति में थे, लेकिन उन्होंने उसमें से भी मार्ग निकाला, इस धर्म संकट से उन्होंने मार्ग निकाला। वे कहते हैं उस व्याध को, जिसने उस हिरण को जाते हुए, दौड़ते हुए, छिपते हुए, जहां से निकलते हुए देखा, वे मेरी आंखें
वह बोल नहीं सकती, आंखें बता नहीं सकती, और जो बोलेगी वह मेरी जीभ बोलेगी तो जरूर, लेकिन वह देख नहीं सकती। उसने हिरण को जाते हुए देखा नहीं है, आंखों ने देखा, वे बोल नहीं सकते। जीभ बोलेगी लेकिन वह देख नहीं सकती, इसलिए यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा कहकर उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया और कहते हैं यह तर्क शास्त्र की निर्मित का बिंदु है। भारत में जो तर्क शास्त्र निर्मित हुआ वह इस स्थान से, जो आंखें देखती है वो बोल नहीं सकती, बोलेगी तो कुछ दूसरा ही कुछ बोल देगी, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। जो जीभ बोलेगी वह देख नहीं सकती, उसने प्रत्यक्ष देखा नहीं है लेकिन बोल कुछ देगी, इसलिए गड़बड़ है, तो भैया ये तो नहीं चल सकता। तो वह परेशान होकर वह व्याध वहाँ से निकल गया। हिरण की जान बच गई। व्याध तो दूसरी भी कोई चीज़ खा सकता है, फल मूल कंद आदि भी खा सकता है और अपनी क्षुधा वह मिटा सकता है, इसलिए वह प्राणी वहाँ बच गया और ऋषि को अपना व्रत भंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस प्रकार सत्य का पालन किया जा सकता है। आगे है अस्तेय, यह भी एक बड़ा व्रत है। स्तेय का मतलब चौर्य कर्म। अधिकतर लोग आप में से जानते हैं, कोई चीज जो दूसरे के अधिकार क्षेत्र की है वह अपने अधिकार क्षेत्र में आ जाए, ऐसा लगना, इतना लगना मात्र भी स्तेय कर्म है, क्योंकि उस वस्तु पर हमने अपना स्वामित्व आरोपित किया। जो भी ऐसा स्वामित्व आरोपित करता है, ये पेन यहाँ रखा है, यह मुझे चाहिए, कि बस यह स्तेय कर्म हो गया। चाहे शारीरिक रूप से प्रत्यक्ष उठाया, चाहे वाचिक रूप से जरा वो पेन ले आओ रे, और मानसिक रूप से वह पेन मुझे मिलना चाहिए, इस रूप में वह हो जाता है। इसलिए कोई और पर स्वामित्व की वस्तु मेरे स्वामित्व में आ जाए, ऐसा न लगना, अर्थात उस वस्तु को मूल्यवान समझना, बस यहीं पर गड़बड़ शुरू होती। उस वस्तु को मूल्यवान समझना यहीं पर। देखिए, यह सारी वस्तुएं, सारे रत्न, सारा धन, सारा वैभव इस पृथ्वी से, इस धरा से निर्मित हुआ है। आप देखिए, हीरे, माणिक, मोती, रत्न, पाचू आदि सारा कुछ इस भूमि से ही तो निकले। इस भूमि के अंदर है क्या और इस भूमि के बाहर है क्या? इस भूमि में किसी ने निकाले नहीं और किसी ने निकाला। यह किसी के तिजोरी के अंदर है या किसी के घर के सामने टेबल पर रखे हुए हैं, इसमें कोई अंतर नहीं। इस पृथ्वी पर का भार एक अंश से भी, 1 ग्राम से भी ना बढ़ा ना कम हुआ। उस पृथ्वी के समग्र भार में वह वैसे के वैसे ही शामिल रह जाते। लेकिन हमारी बुद्धि, हमारी मनस्थिति उससे जो बिगड़ती है, बस वही है यहाँ पर गड़बड़ वाला। क्या होती है बुद्धि? कि मेरे स्वामित्व में रहना चाहिए, ऐसी अशुद्धि वहाँ पर निर्मित होती है। इसलिए मैं अनेकों बार उदाहरण देता हूँ योग टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स के लोगों को, कि जैसे यहाँ से क्लास खत्म होगी और वे निकले, मान लो ये रेलवे गेट है नीडम के पास, पर रेलवे गेट पार किया और उस साइड में गए और उनको रास्ते में एक अंगूठी पड़ी हुई मिल गई, कुछ सोने जैसी लगती है, तो क्या करोगे? ऐसा मैं जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं उनको पूछता हूँ, फिर वो अलग अलग चीजें बताते हैं। वो कहते हैं वहाँ जो लोग होंगे उनको हम पूछकर यदि किसी के है तो दे देंगे। मैं कहता हूँ मान लो वहाँ कोई नहीं है तो बोले फिर हम पुलिस स्टेशन में जाकर दे देंगे। मान लो पुलिस ने रख ली तो फिर हम ऐसा करेंगे कि मतलब कोई और कहता है कि हम किसी मंदिर में जाकर उस मंदिर की दान पेटी में डाल देंगे। अच्छा, मंदिर की दान पेटी में डाल देंगे, अच्छा, तो मंदिर में दे देने से वह ठीक हो जाता है। लेकिन मान लो
थोड़ी देर के बाद वह व्यक्ति वहां पर आता है जिसकी अंगूठी खोई, फिर उसको कैसे मिलेगी? हाँ, ये भी एक समस्या है। फिर हम नीडम जैसे जगह पर हम रख देंगे। ऐसे बहुत अलग-अलग प्रकार की। और कोई-कोई तो ये भी कहते हैं कि हम उसको ले लेंगे और घर जाएँगे। हम उसको बाज़ार में सराफा बाज़ार जाएँगे, बेचेंगे, उससे जो पैसे आएँगे, उससे अपने घर की कोई वस्तु खरीदेंगे और आराम से रहेंगे। ऐसा भी कोई-कोई लोग कहते हैं। बात क्या हुई? जो योग मार्ग पर चल पड़ा है, उसने उस अंगूठी को उसने उसको मूल्यवान समझा, उसको मूल्य आरोपित किया। बस यहीं से अवनति शुरू हो गई। अयोग की स्थिति यहीं से बनी, यहीं से मन का अशुद्धि का कारनामा शुरू हो गया। यह अनुष्ठान कर ही इसलिए रहे कि अशुद्धि का क्षय हो और धीरे धीरे साधक उस अशुद्धि क्षय से प्रज्ञा की ओर और धीरे धीरे असंप्रज्ञात समाधि से वह आगे बढ़कर वह मोक्ष स्थिति की ओर बढ़े। और यह इस बात से वह समाप्त हो जाएगा। इसलिए हर बार कोई भी चीज करते हुए हमें उस मूल स्थान पर हमने उसको साधना के रूप में लिया है, इसका अनुष्ठान के रूप में लिया है कि चित्त में किसी प्रकार की अशुद्धि ना आए। और इसलिए हमने वहाँ जागरूक अपने आप को रखने की आवश्यकता है। तो हमने अस्तेय इस रूप में लेने की जरूरत है। आगे रह जाता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय होने के बाद ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य ये डायरेक्ट है, सीधा पालन करने का है, और अपरिग्रह यह विरोधार्थी डोंट के रूप में है। मतलब परिग्रह मत करो, वस्तुओं का संग्रह मत करो, इस रूप। इसको हम आगे चलकर फिर देखेंगे। तो मैं तो सोच रहा था कि आज यम को पूर्ण करूं, लेकिन यहीं रुकते हैं, समय भी समाप्ति की ओर है। तो यहाँ थोड़ा सा ये समाप्त करते हैं प्रार्थना से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रथम सत्र यही समाप्त होता है। धन्यवाद। थोड़ा सा शांत बैठ लेते हैं 2-4 मिनट के लिए। मैं यह मानता हूँ कि हम में से अधिकतर लोग दिन में जब जब मौका मिलता है, अवसर मिलता है, तब तब 1-8 मिनट के लिए चुप शांत हो जाते होंगे। शांत हो जाइए, शांत, एकदम शांत, एकदम शांत। शांत हो जाइए, सहज सरल हो जाइए। अंदर से घिस पुस कर, जैसे वह लालटेन की कांच की जो बाहर की उसका जो सुरक्षा कवच होता है, उसके सफाई की जरूरत होती है, तो भीतर का जो प्रज्ञारूपी दीपक प्रज्वलित होता है, वह दीप ज्योति बिना हिले डुले
बिना बाहरी बातों से विचलित होते हुए स्थिर हो जाती है और उसका समग्र प्रकाश बाहर आने लगता है और उस वातावरण को, आसपास के सभी क्षेत्र को आलोकित करता है। ऐसा ही अपने भीतर की प्रज्ञा को जागृत होने दे। अपो दीपम भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इसी के साथ आज का यह सत्र समाप्त होता है। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।